मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे ਆਪਾਂ पी ब्लॉक कर रहे सी एंड yesterday you appeared in the test for group 13। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ पी ब्लॉक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ group 14 स्टार्ट कर रहे हैं एंड विद दिस अपनी इनऑर्गेनिक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाऊगा। ठीक है। सो पी ब्लॉक ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ वी नो सॉरी पी ब्लॉक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ group 14 करना है एंड group 14 ਦਾ वी नो कि अपने पास एलिमेंट्स आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन कर देना वैसे ही है ना। सो देखो इन्हां दे आउटर शेल च देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो जी 4 इलेक्ट्रॉन्स होने करके इन्हां दी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है NS2 NP2। सो इन्हां दियां मोस्ट प्रोबेबल दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स किहड़ियां होईयां, एक तां +2 और एक +4। अगेन सेम लॉजिक, जदों सिर्फ p इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे तो +2, व्हेन ऑल द 4 विल पार्टिसिपेट +4। ठीक है। एंड सेम जिवें जिवें तुसीं नीचे आओगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग while that of +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। एंड जो लेड है अपन उसके मोस्टली कंपाउंड्स किस मिलेंगे +2, या बेटर टू से कि +2 वाले कंपाउंड्स विल बी मोर स्टेबल फॉर लेड एज कंपेयर टू +4। जिदा कि देखो कार्बन अपन सिर्फ CCl4 बना के दिंदा है। ठीक है। देयर इज नो CCl2 सो +4। सिलिकॉन अगेन ओनली +4। जर्मेनियम सॉरी GeCl4 अगेन फाइन। टिन ते अपन दोनों कंपाउंड्स मिलते हैं SnCl4 SnCl2। लेड दे विच PbCl4 PbCl2 out of which PbCl2 is more stable and that is why ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि ਜਦੋਂ lead ਦੇ कंपाउंड्स होंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेज they will act as oxidizing agents। important question ਹੁੰਦਾ है कि why lead dioxide PbO2 acts as an oxidizing agent। ठीक है। तो उसका आंसर यही आएगा बच्चे कि जो PbO2 है ethyl lead is in +4 oxidation state, so it has a very high tendency to get reduced to +2। so देखो ਤੁਸੀਂ दोनों तरीके नाल एक्सप्लेन कर सकते हो इसनु। ठीक है। सो या तो ऐसा लिख दो कि देखो इसने नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता सो इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप सिंपली लिख दो कि इट हैज अ वेरी हाई टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड टू +2 बिकॉज its more stable oxidation state is +2 due to inert pair effect। ठीक है। तब खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करूंगा and that is why it acts as an oxidizing agent। similarly PbCl4 can also act as an oxidizing agent, same reason it will get changed to PbCl2 plus chlorine। so खुद रिड्यूस हो जाएगा from +4 to +2 and दूसरे को क्या कर दूंगा ऑक्सीडाइज। बच्चे ये करेगा पॉइंट। ठीक है ना। so they are more stable in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर द ग्रुप, जबकि ऊपर वाला ने बच्चे देखो कार्बन वगैरह देता +2 च कंपाउंड्स ही नहीं मिलते हैं बेशक। देखो जिवें कार्बन ਦੇ दोनों ऑक्साइड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ CO2 and CO कार्बन मोनोऑक्साइड +2 and +4, but mainly carbon forms compounds in +4 rather than +2। just एक सेकंड बच्चे। So carbon mainly forms compounds in +4 rather than +2। Similar is the case for silicon and germanium। tin ਤੇ ਜਾਕੇ +2 compounds start ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and lead ਦੇ compounds are more stable in +2 than in +4। I hope fine। एक और point जो आप ਇੱਥੇ डिस्कस करना है बच्चे। सो बेसिकली देखो कि इस ग्रुप दे विच देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। देखो पहले ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ देयर इज वन इलेक्ट्रॉन, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ they will lose one electron, so they are metals। group 2 ਚ they will lose two electrons। group 3 ਬੇਸ਼ੱਕ boron is a non metal ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਮੈਟਲੋਇਡਸ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ they will lose 3 ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ they have 5 electrons, they will gain 3, so they are non metals। oxygen family, they have 6 electrons in the valence shell, so they will gain 2। fluorine family, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ outer shell 7 electrons ਹੈ, so they will gain 1, so they are non metals। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ there are 4 electrons, ਤਾਂ there is equal tendency ਕਿ ਇਹ 4 ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ 4 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, and that is why basically ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ separating group ਹੈ between metals and non metals। so group 14 is basically ਇੱਕ demarcating line ਹੈ between metals and non metals, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 outermost electrons and that is why ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ most of them are metalloids, they form amphoteric compounds। वैसे जो exact distribution है वो ये है कि carbon and silicon are non metals, carbon and silicon are non metals, fine। so carbon and silicon they are non metals, germanium is a metalloid while tin and lead are metals। so बेशक metallic character is increasing down the group, but बच्चे अगर आप exactly देखिए तो सिलिकॉन भी एक बहुत वीक मेटल नॉन मेटल है, टिन भी एक बहुत वीक मेटल है, इनफैक्ट लेड भी एक वीक मेटल ही है। मेरी गल समझ लो ना, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਲੈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਿਕ, बट स्टिल अगर तुसी इसनू किसी स्ट्रॉन्ग बेस नाल रिएक्ट करो तो सॉल्ट बना लूगा। इट मींस ये एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। देखो मेरी गल सुनो, यू हैव लेड ते तुसी उहदे विच NaOH पाया तो सोडे कोल बच्चे सोडियम प्लम्बाइट बनूगा प्लस हाइड्रोजन आउट। सो लेड ने एक बेस दे नाल सॉल्ट बना लिया ਤੇ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਟ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੀਕਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਪਾਓ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਸਿਲੀਕੇਟ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਬੱਚੇ, Na2SiO3, ਅਗੇਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਿਲ ਮੂਵ ਆਊਟ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਿਲੀਕਨ ਤਾਂ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, बट टिन एंड लेड भी बना देंगे ने, सोडियम स्टैनेट भी बन जाएगा, सोडियम मेटास्टैनेट, ठीक है ना। अगर तुसी लेड की जगह पे टिन लाओगे तो भी अपने को Na2PbO2, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं इथे टिन लिया हुंदा तो भी मेरे को Na2SnO2 भी बन जाता, सोडियम मेटास्टैनेट। सो ये मेटल्स मतलब ये वाले जिहड़े वीक मेटल्स भी ने ये भी बेसिस दे नाल सॉल्ट्स बनाई जा रहे हैं। तो जो बनाई जा रहे हैं तो इट मीनस इन्हां कोल जिहड़ा मैटेलिक करैक्टर है दैट इज वेरी 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 वीक, ठीक है ना। सो बेसिकली जिहड़ा ये ग्रुप है इट इज अ डिमार्केटिंग लाइन, इट इज अ सेपरेटिंग लाइन बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। ਇਹਦੇ लेफ्ट साइड ਤੇ मोस्टली मेटल्स है, राइट साइड ते मोस्टली नॉन मेटल्स है बच्चे, क्लियर। नाउ एक चीज हो, वो एक रेपिटेशन ही है rather than कोई नवी चीज नहीं है। हुण अगर मैं तुहानू पूछां कि PbCl2 ते PbCl4 इन्हां दोनों विचों किहड़ा ज्यादा आयोनिक है या किहड़ा ज्यादा कोवेलेंट है, तो पहला आपां डिस्कस कर चुके हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज्यादा आयोनिक हुंदा है ते हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज्यादा कोवेलेंट हुंदा है। ते इसनू एक्सप्लेन कर सो क्वेश्चन आ सकता है कि why the compounds in higher oxidation state are covalent, है ना, क्योंकि इथे lead +2 है, इथे lead +4 है। ਤੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਜਾਨ ਰੂਲਸ, ਫਜਾਨ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਵੈਲੈਂਸੀ ਜਾਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ
is directly proportional to charge and inversely proportional to size. So ਇਹਦਾ charge ज्यादा है, size नाले छोटा होएगा, so दोनों factors covalent character ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ हैं। एक ये वे भी है। दूसरा ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ +4 ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਲੋ, ਨॉन ਮੈਟਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਤਾਂ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਚ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। and that is why the compounds in higher oxidation state are predominantly covalent while those in lower oxidation state are predominantly ionic। clear? so ये कुछ जनरल चीजें हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, now we shall start off with our different topics ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 by 1 ਟੌਪਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਫਰਸਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਾਰਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਡਿਫਰਸ ਫਰਮ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਮੈਂਬਰਸ, ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨਸ, small size, high ionization energy या electronegativity, number 2, number 3 absence of d orbitals। और कार्बन ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਜਾਂ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚ ਕਿ the ability to form pi bonds। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ N2, ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ P4, ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ O2, ਸਲਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ S8। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ N ट्रिपल बॉन्ड N, सो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O डबल बॉन्ड O, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। जबकि P4 का फॉर्मूला, सो ड्यू टू देयर लार्ज साइज ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, दे विल फॉर्म, देखो बॉन्ड्स नाइट्रोजन दे भी 3 ही हैं बट एक सिग्मा है 2 पाई है, इन्हां दे तीनों सिग्मा बॉन्ड्स है with 3 different phosphorus atoms। similarly sulfur, so this is the structure of sulfur molecule। so ये 8 सल्फर एटम्स है बच्चे, है ना। सो सबने 2-2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं बट कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, 2 अलग-अलग सिग्मा बॉन्ड्स ने विद 2 डिफरेंट सल्फर एटम्स। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਵੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪਾਈ ਬੌਂਡ, ਅਗਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ POCl3, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ p ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ। p ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਕਿਉਂ? ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ 1s2 2s2 2p4। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਆਰਬਿਟਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਆਕਸੀਜਨ
1s2 2s2 2p4। सो बच्चे ऑक्सीजन के दो ऑर्बिटल्स ने जिहड़े हाफ फिल्ड है, दोनों आपस च ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके एक दे विच बन जाऊगा सिग्मा बॉन्ड, दूसरे दे विच बन जाऊगा पाई बॉन्ड। ऐसे ही कीता सी आपां ने। हुण वो पाई बॉन्ड किस दे विच बने, एक ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, दूसरी ऑक्सीजन का भी 2p ऑर्बिटल, तो दो p ऑर्बिटल्स दे विच पाई बॉन्ड बने हैं, तो इस करके आपां इस पाई बॉन्ड नु कहने हैं p पाई बॉन्ड। समझ गए ना। सो जिहड़ी पहली एलिमेंट हुंदी है नॉन मेटल्स दे केस च, it has an ability to form p pi bonds due to its small size। ठीक है, सो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। पंजवां पॉइंट जो सिर्फ अपने कार्बन दे केस च याद करना है, सानू सब नु पता है कि इट हैज एन एबिलिटी टू शो कैटिनेशन। कैटिनेशन की होती है, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स फॉर्मिंग कॉन्टिन्यूअस बॉन्ड्स, है ना। ते ओ किदे करके होती है, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। देखो हुण अगर मैं आपस विच कार्बन दे एटम्स नु जोड़ जोड़ के लंबियां लंबियां चेन्स बनाई जाऊंगा, वो ताइयों बननगियां बच्चे अगर इन्हां दा आपस विच बॉन्ड की होगा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो कार्बन कैन शो कैटिनेशन, होर कोई भी पीरियोडिक टेबल दे विच इतनी कैटिनेशन शो नहीं करता, इस ग्रुप नु तो छड्ड ही दो। ठीक है, सो हुण कार्बन बाकी सब तो डिफरेंट होगा ड्यू टू 5 रीजंस। नंबर 1 स्मॉल साइज, नंबर 2 small size, number 2 high electronegativity, number 3 absence of d orbitals, number 4 ability to show p pi bonding, and number 5 ability to show catenation। clear? ठीक है, now so दो बात बचे इन्हां दियां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दित्तियां हुई हैं that you can do। एटॉमिक रेडियाई, हाँ जी, सो पिछले ग्रुप की तरह थोड़ियां बहुत एक्सेप्शंस इस ग्रुप च भी आएंगे बच्चे, मैं तुहानू वो कोरिलेट करके ही दस रहा है। इधर देखो ध्यान नाल जरा, सो देखो बच्चे आप पिछले ग्रुप च की कीता सी, बोरॉन, एल्यूमीनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आपने क्या सीगा कि नीचे जाने वक्त आप एक्सपेक्ट करते हैं कि साइज इंक्रीजेस, बट गैलियम का साइज एल्यूमीनियम नालों छोटा सी, इत्थे साइज वधिया था सी बट लगभग सेम सी। ठीक है, फिर आपने आयनाइजेशन एनर्जी च कीता सी कि नीचे जाने वक्त आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, बट इत्थे जाके थोड़ी जी वधी सी, इत्थे जाके तक काफी ज्यादा वधी सी। ठीक है, सो ये कुछ एक्सेप्शन सीगियां, तो ਉਹਦੇ ਚ आपने रीजन की कीता सी, इन्हां दोनों दे विच जिहड़ा एक्सेप्शनल केस बनता है वो क्यों बनता है, ड्यू टू द फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स डी च गए जिन्हां दी शील्डिंग की सी वेरी पुअर, याद है ना। ते इत्थे वही रीजन ड्यू टू द फिलिंग ऑफ इनर एफ ऑर्बिटल्स जिन्हां च 14 इलेक्ट्रॉन चले गए। सो न्यूक्लियर चार्ज 14 यूनिट बढ़ गया, बट शेल अपना नहीं है, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, हुण यही कुछ एक्सेप्शंस आपां नूं देखणियां पैणगियां, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। सो बच्चे जरा नेक्स्ट पेज ते जिहड़ा टेबल बनया होया है उस नूं देखो, ते मैं उस दे विचों तुहानूं कुछ एक्सेप्शंस नोट डाउन करवाना है। सो पहला रेडियस, कार्बन की रेडियस हैगी है 77, सो रेडियस 77, सिलिकॉन 118, जर्मेनियम 122, 140 एंड 146। क्लियर? सो कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हुई, ताइयों मैं तुहानूं कहा कि क्वेश्चन अपन इत्थों ही आऊगा जे आऊगा, बट मैं जस्ट तुहानूं समझा रहे हैं। देखो कार्बन तो सिलिकॉन एक काफी बड़ी जंप बची, साइज बढ़ गया क्योंकि शेल बढ़ गया। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਪ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ? ਸੇਮ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਜੰਪ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੰਪ ਕਿਉਂਕਿ F सबशेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ 1086,
first ionization energy of carbon 1086, then it is 786, then 761, 708 and 715. So देखो एक्सेप्शन क्रिएट होगी, बट क्वेश्चन कैरिस्ट बहुत घट आता है, बट स्टिल एक एक्सेप्शन क्रिएट होगी। आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाते वक्त डिक्रीज करती है, तो पहला तो देखो ਇੱਥੇ कितना गैप है बच्चे, ठीक है, पूरे 300 यूनिट्स का, ਇੱਥੇ छोटा जा रह गया, काफी घट गया। चलो ਇੱਥੇ फिर एक बड़ी जंप हुई, ਇੱਥੇ तो बच्चे इंक्रीज हो गया, ये गेटिंग अ पॉइंट। सो अगेन ਇੱਥੇ जंप छोटी क्यों हुई, जरूरत तो एक्सपेक्टेशन तो ड्यू टू द फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, और ਇੱਥੇ ड्यू टू द फिलिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स। क्लियर, सेम रीजंस। हुन अगली चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बच्चे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ते अगर तुसी निगाह मारो तो साडे कोल वैल्यूज की बनन गया, हाँ जी। सो कार्बन इज 2.5, उस तो बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाते वक्त डिक्रीज कर दी है, बट इत्थे की होएगी ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल। सो ध्यान नाल देखो 1.8 1.8 1.8 1.9, so electronegativity remains again almost the same, जिਵੇਂ पिछले ग्रुप च ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। so these are some of the properties ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ बोरॉन वाज 2 1.5 1.6 1.7 1.8, ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। ਇੱਥੇ बोरॉन तो एल्यूमिनियम सॉरी कार्बन तो सिलिकॉन डिक्रीज कर दी है, देन रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। क्लियर, मेटालिक कैरेक्टर में सुनो पहले ही दस चुके हैं, कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स, जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड, टिन एंड लेड आर मेटल्स। क्लियर बच्चे, ठीक है। नाउ सो एटॉमिक रेडियस, सो हो गया बच्चे एक्सप्लेन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आओ, आयनाइजेशन एनर्जी, अगेन सेम, क्लियर, सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी हो गया। नेक्स्ट इज मेटालिक कैरेक्टर, देखो वो भी मैं विच ही दसता, बट अगेन आई लाइक टू रिपीट, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि बच्चे कार्बन इज अ प्योर नॉन मेटल, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम ते टिन, ये तीनों लगभग बाकी सारे मेटलॉइड्स है बच्चे, लगभग पिछले ग्रुप की तरह, क्योंकि सिलिकॉन इज अ वेरी 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 वीक नॉन मेटल, जर्मेनियम ते टिन, जर्मेनियम इज अ टिपिकल मेटलॉइड, tin is a very 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 weak metal, and lead also shows a weak metallic character, जो किथों प्रूव हुंदा है इन्हां दा, क्योंकि अगर आप इन्हां नूं किसी बेस च पाने हैं, they again form salts। क्लियर, सो एक ग्रुप है बच्चे जिहड़ा basically again I would like to repeat कि it is a demarcating group, it is a separating group between the metals and the non metals, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੋਲ इन्हां कोल लगभग प्रॉपर्टीज किदियां ने मेटलॉइड्स दियां। I hope fine now। So next is oxidation states। So मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ दस चुके हैं कि इन्हां दियां major oxidation states are +2 and +4। While coming down the group, the stability of +4 it decreases and that of +2 it increases, ठीक है, stability of +4 it decreases and stability of +2 it increases due to inert pair effect। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ lead ਦੇ compounds हैं +4 PbCl4 PbO2 they act as oxidizing agents क्योंकि they have a very strong tendency to get reduced to +2 oxidation state, so themselves they get reduced and oxidize the others, and that is why they are very 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 good oxidizing agents। ठीक है ना। एंड जिद्दां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कल टेस्ट भी क्वेश्चन पाया सी कि ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ऑक्साइड्स होंगे, सो देखो CO2 SiO2 GeO2 SnO2 PbO2। सो अपन ਇਹਨਾਂ ਦੇ ऑक्साइड्स बना ले बच्चे, ठीक है कि नहीं।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਸਿਲੀਕॉन ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਰ ਐਸਿਡਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब अगर मैं इन्हें वाटर पाऊंगा तो आई गेट एसिडिक सॉल्यूशन, इथे कार्बोनिक एसिड, इथे साइलिसिक एसिड। बाकी सब दे ऑक्साइड्स देखो, हालांकि जे ये मेटल्स है इन्हां दे ऑक्साइड्स तो बेसिक होने चाहिए ने, बट दे आर वेरी 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 वीक मेटल्स एंड दैट इज व्हाई इन्हां तिन्नां दे ऑक्साइड्स दे आर एम्फोटेरिक। बच्चे गल नूं समझ रहे हो कि नहीं? देखो आपां ने कहा सीगा कि कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन एंड सिलिकॉन ये मेटलॉइड ते ये मेटल्स ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਕੀ ਬਣਦੇ? ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਬਟ देयर ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਰ ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ which shows ਕਿ they have a very 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 weak metallic character. Getting a point? Now so come on to the next property. Problem number 5 ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, the compounds of group 14 in +4 are covalent and +2 are ionic. Y ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚੇ, ਕਲੀਅਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Problem number 6, so जरा फोकस करो। ट्राइसिलाइल अमीन इज प्लेनर whereas ट्राइमिथाइल अमीन इज पिरामिडल। व्हाई? बच्चे क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ, so what they are trying to say is कि अगर मेरे पास ट्राइमिथाइल अमीन है, so this is a methyl group, in नाइट्रोजन ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ नाइट्रोजन ਕੋਲ ਇੱਕ लोन पेयर है, so this is ट्राइमिथाइल अमीन। उन्होंने किया कि this is pyramidal, फाइन। एंड एक तरफ वो कह रहे हैं कि अपने पास है ट्राइसिलाइल अमीन which is planar, ट्रायंगुलर प्लेनर। वो कहते हैं कि why? क्योंकि देखो तो दोनों कंपाउंड्स आर सेम, क्योंकि कार्बन ते सिलिकॉन ਦਾ ਹੀ देखो फर्क है, ते कार्बन ते सिलिकॉन ਇੱਕੋ ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। देखो ये ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? देखो बच्चे, बेसिकली both the compounds are derivatives of ammonia। देखो अमोनिया ਦਾ स्ट्रक्चर ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? अमोनिया अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर ਲੈਂਦਾ ਹੈ with 3 हाइड्रोजन्स। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ you have to be very thorough with hybridization, chemical bonding ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ? sp3 1 2 3 4, ਸੋ ਪਿਰਾमिडल ਸ਼ੇਪ, ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ H ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਿਦ ਕਾਰਬਨਸ, ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ, ਸੋ ਦੇਖੋ डन। सो बेसिकली अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया नाइट्रोजन दे नाल, 3 कर ले हाइड्रोजन दे नाल, सो मिथाइल। आई होप फाइन। सो ट्राइमिथाइल अमीन, सो सेम बिल्कुल डिट्टो स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕੌਣ ਪਿਆ? ਸਿਲੀਕॉन, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲੀਕॉन ਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਵੀ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦਾ? ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਬੱਚੇ। क्लियर कि नहीं? सो सिलिकॉन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लिया 3 हाइड्रोजन्स ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਦਾ ਪਿਰਾमिडल होना चाहिए, बट ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? एक नॉर्मल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ना कि डिस्टॉर्टेड। सो ये क्यों है बच्चे? कहते
है ना, why it exists like this। सो ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਿਰਾमिडल ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੌਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਡਨ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੀਕॉन ਹੈ, सिलिकॉन ने भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, एक नाइट्रोजन नाल 3 हाइड्रोजन नाल। सिलिकॉन भी कंप्लीट है, नाइट्रोजन भी कंप्लीट है। नाउ जो सिलिकॉन है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ d ऑर्बिटल्स नहीं ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ empty d ऑर्बिटल्स ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। सिलिकॉन has empty d ऑर्बिटल्स ਤੇ नाइट्रोजन has a lone pair। सो अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर लूंगा विद empty d orbitals of कोई भी एक सिलिकॉन। मेरी गल समझ आई कि नहीं, किसी भी एक सिलिकॉन के नाल। सो हुन ध्यान नाल देखो नाइट्रोजन दी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी 1 2 3, क्योंकि पाई बॉन्ड तो आप काउंट ही नहीं करते डबल बॉन्ड चों। सो हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp2 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ शेप की हो जूगी, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ क्योंकि ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ शेप की हो जूगी sp2 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ट्रायंगुलर प्लेनर। क्लियर बच्चे। सो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैं रिपीट कर रहे हैं कि हाउ टू राइट द आंसर। आप लिखेंगे इन केस ऑफ ट्राइमेथाइलएमीन नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 3 ऑफ द कार्बन्स। ठीक है। सो नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड द स्ट्रक्चर इज पिरामिडल विद 1 लोन पेयर। ठीक है ना। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ however in case of triethylamine the lone pair of nitrogen gets delocalized into the empty d orbitals of silicon। The lone pair of nitrogen gets delocalized into the empty d orbitals of silicon। So nitrogen becomes sp2 hybridized and the structure is triangular planar। I hope it is well and fine, clear। So next, formation of ऑक्साइड्स। सो ऑलरेडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ठीक है बच्चे, इन्होंने दोनों ऑक्साइड्स मेंशन करते, डाइऑक्साइड्स भी एंड मोनोऑक्साइड्स भी। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ पॉइंट टू भी नोटेड सिर्फ एक है, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ कि CO2 वैसे ਆਪਾਂ डिफरेंसेस करांगे। CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, जबकि कार्बन ਦਾ ਜਿਹੜਾ दूसरा ऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज वेरी मच न्यूट्रल। ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड ना एसिडिक ना बेसिक बच्चे, इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ कार्बन। ठीक है ना। नाउ एक्शन विद एल्कलीज, सो मैं पहले ही दस चुके हैं बट इथे अंडरलाइन करने वाला पॉइंट की है एक्सेप्ट कार्बन। देखो कार्बन एक नॉन मेटल है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एल्कलीज नाल रिएक्ट करूगा, बट नहीं, ओदे ऑक्साइड्स पे एसिड करूगा, बट कार्बन डायरेक्ट इन्ना हार्ड एलिमेंट है कि ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਕਸਾਈਡਸ ਕੋਈ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਐਲਕਲੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਟਸ ਬਣਾ ਲਣਗੇ। सिलिकॉन बना लूंगा सोडियम सिलिकेट, लेड बना लूंगा लेड सोडियम प्लम्बाइट, टिन बना लूंगा सोडियम मेटास्टेनेट एंड एटसेट्रा। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। सो बच्चे हाइड्राइड्स की होंगे हैं? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्राइड्स? हाइड्राइड्स आर कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्राइड्स आर कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। ठीक है। सो सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिहड़ा कि हाइड्रोजन दे नाल कंपाउंड्स बनांदा है, कार्बन, ते बहुत सारे कंपाउंड्स बनांदा है, कोई एक अद्धा कंपाउंड नहीं। दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड इट इज अ कंप्लीट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ते आपां बहुत चंगी तरह करांगे। ठीक है ना। सो अच्छा, कार्बन ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਆਰ ਅਨਸਟੇਬਲ। ਡਨ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਲਾਈਡਸ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਈਹੈਲਾਈਡਸ ਐਂਡ ਟੈਟਰਾਹੈਲਾਈਡਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਟੈਟਰਾਹੈਲਾਈਡਸ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੇਨਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਟੈਟਰਾਹੈਲਾਈਡਸ ਲਾਈਕ CCl4। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟੈਟਰਾਹੈਲਾਈਡਸ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ, डाइहैलाइड्स की स्टेबिलिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू
inert pair effect. Clear? Problem number 7 बच्चे, CCl4, हाँ जी, very important, पूरी चंगी तरह मार्क कर लो. CCl4 cannot be hydrolyzed while SiCl4 can be easily hydrolyzed. Why? ਹੁਣ एक very important ਤੇ very easy question है, but very important logic भी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. CCl4 cannot be hydrolyzed whereas SiCl4 can be easily hydrolyzed, ठीक है ना. Why? ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ठीक है. सो जरा ध्यान ना देखो, मतलब अगर मेरे पास बोरॉन का ट्राईहलाइड है तो मैं उसके विच वाटर पावां, तो क्लोरीन इज -1, बोरॉन इज +3, वाटर भी नो इट इज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. सो तीन वाटर्स आएंगे, तीनों HCl बाहर, 3 OH बोरॉन दे नाल लग के they will give you H3BO3. I hope this is fine, ठीक है. बोरिक एसिड बन गया मेरे पास, ठीक है बच्चे. सो बेसिकली हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं, H दे नाल Cl बाहर जा रहे हैं, ठीक है. नाउ दे आर सेइंग कि अगर मैं यही रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड दी ट्राई करा तो नहीं हो रही, सेम ही है, -1, बस वैलेंसी +4 है, हो गया है ना. H ਦੇ ਨਾਲ Cl आउट ਤੇ OH ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ. बट ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, तो हो गया 4HCl आउट, H4 सॉरी H4 SiO4, जिदा ਇਹਦਾ ਨਾਮ बोरिक एसिड है, ਇਹਦਾ ਨਾਮ साइरिसिक एसिड है, ठीक है. कहते इतने रिएक्शन होगी, कार्बन ਦੇ ਕਿਸ रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है. क्यों ऐसा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ बोरॉन ਦੀ एग्जांपल ਨਾਲ ही समझाऊंगा बच्चे. देखो ध्यान ਨਾਲ. सो BCl3 ਦਾ स्ट्रक्चर मेरे को ले गया है. बोरॉन को 3 इलेक्ट्रॉन सी, उसने तीनों 3 क्लोरीन्स नाल शेयर कीते, नाउ इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स. ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਲੂਗਾ. ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਪਾਇਆ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ. फिर उस तो बाद H ਤੇ Cl आउट हो जाएंगे, फिर मेरे को बन गया B Cl Cl and OH. मेरी गल समझ गए ना, H and Cl आउट हो गए, जेड़ा हा OH है वो इस Cl की जगह पे आ गया. हुण एक होर वाटर आऊगा, अगेन वो कोऑर्डिनेट करूंगा, हुण अगेन एक Cl आउट, दूसरा OH भी आ गया, फिर तीसरा OH भी आ जाएगा. दिस इज हाउ. ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा है कि ताकि अपन को पता चल जाए कि बेसिकली हाइड्रोलिसिस हुंदी किवें है. भी ऐदा नहीं भी सिंपल H पॉजिटिव ते Cl नेगेटिव आउट तो इस जगह पे OH लग गया, फिर तो CCl4 भी हो जाती. नाउ ये बच्चे समझ आ गया ना, ठीक है. हुण देखो, सो हुण की होएगा, हुण मैं यही चीज ट्राई की थी कार्बन टेट्राक्लोराइड दे केस च. मैं इस दे विच वाटर पाया, तो वाटर को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैगे है, ठीक है. बट द प्रॉब्लम इज कि कार्बन नु हुण इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही है नहीं बच्चे. कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन सी, चारों शेयर हो गए, ਉਹਦੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ. ਆਕਟੇਟ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ d orbitals. ਸੋ no reaction will be there, ਵਾਟਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਬੱਚੇ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਲੀਕॉन ਹੋਵੇ,
सिलिकॉन दे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बेशक पूरे है, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर वाटर उसके ऊपर अटैक करूगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाऊगा। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने तो बाद HCl आउट हो जाऊगा ते मेरे कोल बन जाऊगा SiCl OH Cl Cl। हुन एक होर वाटर आऊगा, एक होर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनूंगा, एक होर HCl आउट होगा बच्चे। सो आई गेट OH OH Cl and Cl। one more water will come now, उसका लोन पेयर अटैक करूंगा, फिर एक होर Cl आउट होगा, I'll get Cl OH 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 and Cl। one more water will come, coordinate bond, HCl out। so finally मेरे को की बन गया बच्चे silicic acid। I hope well and fine। so very important कि CCl4 cannot be hydrolyzed। क्यों? due to the absence of d orbitals, क्योंकि कार्बन ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, फिर वो वाटर ਦੇ ਨਾਲ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊगा ही क्यों बच्चे। सिलिकॉन ਦੇ केस बेशक उसका ऑक्टेट पूरा है, बट वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, हले होर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल्स। सो एक बार वाटर एंटर कर जाऊगा, उस तो बाद हौली हौली करके सारे HCl बाहर हो जाएंगे, Cl will be replaced by OH, finally leading to the formation of silicic acid। I hope well and fine, clear, ठीक है। हाँ जी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस्ड है दैट इज कैटिनेशन। सो आप कर चुके कि कार्बन दी बॉन्ड एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल सब तो ज्यादा है। सो कार्बन इज द ओनली एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टू शो वेरी हाई डिग्री ऑफ कैटिनेशन। कार्बन ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿਲੀਕॉन ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਲਫਰ, ਬਟ कार्बन जिन्नी कैटिनेशन सोनू किते भी देखने ਨੂੰ नहीं मिलती। ठीक है बच्चे, सो वील स्टॉप हियर। नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ डायमंड एंड ग्रेफाइट ਆਪਾਂ केमिकल बॉन्डिंग ਚ थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके, बाकी मैं ਇੱਥੇ भी ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्कस करूंगा ही, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं भी ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ। ठीक है ना। So diamond and graphite we'll be discussing here। एक तीसरा एलोट्रॉप भी ਹੁੰਦਾ कार्बन ਦਾ फुलरीन्स, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ डिस्कस ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, and after that it will end। clear now। so I think ਮੈਨੂੰ मैक्सिमम 2 or 3 ਲੈਕਚਰਸ ਲੱਗਣਗੇ कार्बन फैमिली ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੇ, and then our inorganic chemistry will be over। फिर ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਪ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਚੈਪਟਰਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ then we'll come to organic part। ठीक है, +1 ਦੇ ਵਿੱਚ organic ਦਾ just basic ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾर्ट ਹੈ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ the organic chemistry comes in 10+2। ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਆਪਣੀ 10+2 ਚ ਹੈ, विदाउट फंक्शनल ग्रुप्स एल्केन एल्कीन एल्काइन एंड बेंजीन वो +1 च है। ठीक है बच्चे, सो in a nutshell I just need 2 or maximum of 3 lectures to complete this group। फिर इसका टेस्ट भी हो जाएगा and our inorganic will come to an end। fine, so keep studying, keep revising and take very good care of your health। thanks a lot बच्चे।